السلام علیکم، نیوز سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ سب سے پہلے بات کریں گے راولا کوٹ کے نواحی گاؤں حسین کوٹ میں پولیس مقابلہ، 2 اہلکار شہید، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز خرم ذوالفقار سے۔ جی خرم، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، راولا کوٹ کے نواحی گاؤں حسین کوٹ میں شام 8 بجے کے قریب پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہیں۔ 7 سے 8 جو پولیس اہلکاران ہیں وہ زخمی ہیں، جبکہ 4 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے اس سے پہلے راولا کوٹ کے ایک نواحی چوکی ہے وہاں پہ حملہ کیا تو چوکی افسر کو شہید کیا تھا، اور باغ میں جو پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں 2 پولیس اہلکاران شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جو دہشت گرد تھے یہ فتنۃ الخوارج کے سرکردہ کارکن تھے، اور ان کے پیچھے مختلف سیکورٹی جو ادارے تھے وہ یعنی کہ آپریشن میں تھے۔ اور جب راولا کوٹ پولیس کو ان کی لوکیشن کا پتہ چلا تو انہوں نے ریڈ کیا۔ جب وہاں پر انہوں نے وہاں پہ جا کے ریڈ کیا تو دہشت گردوں نے واپس جو ہے اٹیک کیا، اور وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا جس سے جو ہے نا مختلف جی ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پنجاب پولیس کا ایک اور جوان فرض پر قربان۔ ہارون آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ، CCD میں تعینات سب انسپکٹر شاہد پرویز شہید۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نوٹس، RPO بھاولپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ DPO بھاول نگر کو ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اہم خبر، پنجاب پولیس کا ایک اور جوان فرض کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ہارون آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کی فائرنگ، CCD میں تعینات سب انسپکٹر شاہد پرویز شہید ہو گیا۔ بات کریں گے T20 کے حوالے سے تو پاکستان نے پہلے T20 میں بنگلہ دیش کو 37 رنز سے ہرا دیا۔ گرین کیپس کے 202 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگال ٹائیگر 164 رنز پر ہمت ہار بیٹھے۔ کپتان لیٹس داس 48 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ جاکر علی 36 اور تنزید حسن نے 31 رنز بنائے۔ حسن علی نے 5 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا۔ شاداب خان 2، خوشدل شاہ، فہیم اشرف اور سلمان علی آغا نے ایک وکٹ حاصل کی۔ قومی ٹیم میں سلمان آغا 56، حسن نواز 44 اور شاداب خان کے 48 رنز کی بدولت 201 رنز کا ہندسہ سکور بورڈ پر سجایا تھا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ سیریز کا دوسرا میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کل کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے مارکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ جنگ میں دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کرنے والے بھارت کو شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا 4 ملکی دورے کے تیسرے مرحلے میں آذربائیجان میں اہم دن، سہ فریقی اجلاس میں شرکت کی۔ آذربائیجان نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان دورے کا دوسرا مصروف ترین دن۔ وزیراعظم کی پاک ترکیہ آذربائیجان سہ افریقی اجلاس میں شرکت۔ فریقین کا سہ افریقی اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا، امن کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی ہیں اور آنے والے کل میں بھی رہیں گے۔ بھارت کے ساتھ دہشت گردی پر بات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ترکیہ اور آذربائیجان جیسے دوست ہیں۔ During Pakistan's recent conflict with India, which not only failed to bring up any credible evidence against Pakistan, but also rejected our sincere and generous offer of a neutral, transparent investigation into the so-called incident at Pahalgam by any international body. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک اور آذربائیجان کے صدور سے انتہائی خوشگوار ماحول میں ملاقات۔ شہباز شریف کے چٹکلے پر محفل کشت زعفران بن گئی۔ آذری صدر نے کہا لگا دیا۔ ترک صدر نے بھی شہباز شریف کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ترک میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور آذربائیجان کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل ذاکر حسنوف اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان لاچین میں ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक आज़रबाईजान दो तरफा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। यौम तकबीर कौमी सलामती की तारीख का दरख्शां बाब। यौम तकबीर के मौके पर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की तकरीब में शिरकत। यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा मिली नगमों से गूंज उठी। तालिबात ने कौमी परचम उठाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात अवैस गुज्जर की इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इश्तिराक से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीब का इनका। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में तालिबात की जानिब से हुब्बुल वतनी पर मबनी तकारीर और खाके भी पेश किए गए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जानिब से यौम तकबीर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा, जंग के दौरान हमारी अस्करी, यूथ और मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। आजादी से लेकर इंडिया आज तक पाकिस्तान से ज्यादती कर रहा है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT में नौजवानों ने अपना लोहा मनवा कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। पाकिस्तान के ऊपर बार बार हमले किए गए, पाकिस्तान की असास पर हमले किए गए। हमारे जांबाजों ने जिस तरह का जवाब दिया, इंडिया की नस्लें याद रखेंगी। तकरीब में वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अजमा ने भी अफवाज पाकिस्तान और डॉक्टर अब्दुल कदीर को खराज तहसीन पेश किया। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन सलमान के साथ अवैस गुज्जर, न्यू न्यूज़ लाहौर। यूं तो यौम तकबीर हर साल ही 28 मई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इस दिन की अहमियत भारत को इसी माह में शिकस्त देने के बाद मजीद बढ़ गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का विजन था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बने। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम भारत से मुकाबला हर तरह से कर सकते हैं। वक्कास खान की रिपोर्ट देखिए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से फ्रेयर हॉल में रैली का इनेकाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर की शिरकत। रैली की शुरा की जानिब से यौम तकबीर के हवाले से नारेबाजी की गई। पाक आर्मी, पाक फिजाइया और पाक नेवी को खराज तहसीन पेश किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन और पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री क़यादत की दूरअंदेशी थी। जिस तरह भारत को जवाब दिया गया, उस पर हमें फख्र है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, पाकिस्तान भारत की जारियत से नहीं डरती। वो विजन की तकमील का दिन है। रैली के शुरा का कहना था कि भारत को इस बार भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा और इस साल यौम तकबीर की अहमियत मजीद बढ़ गई है। भारत को भी जल्द पता चल गया कि ये मैं गलत जगह अटक गया हूँ, तो फौरी तौर पर उसने अपने जो है अमेरिका को इन्वॉल्व करके जो है अपनी गलती का एहसास किया और इस जंग बंदी का ऐलान किया। कोई भी मुल्क दबा नहीं सकता, और ख़ास तौर पे इंडिया जैसा मुल्क। अभी रिसेंटली इंडिया ने हमारे ऊपर एक अटैक करने की कोशिश की और उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त भी बताएगा। इसी जज्बे को, तसलसल को हम बरकरार रखने के लिए अपने आने वाली कौम को, अपने पाकिस्तानियों को जज्बा दिलाने के लिए 28 मई को मनाते हैं। उनका कहना था कि भारतीय फौज और भारत के बयानियों को हर मुहाज पर शिकस्त दी गई और यौम तकबीर के मौके पर डॉक्टर कदीर खान समेत तमाम फोर्सेज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वकास खान, न्यू न्यूज़ कराची। नारोवाल में नून लीग के ज़ेरे एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब हुई। केक भी काटा गया। तकरीब में नून लीग के सिटी सदर ख्वाजा नदीम भट्ट, नायब सदर आबिद महमूद, ताजिर, वकला, उलमा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका ने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और एटमी धमाकों पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर और उनके साथियों ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जबकि मियां नवाज शरीफ और पाक फ़ौज के सरबराह के 28 मई 1998 के फैसले ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एटमी ताकत के तौर पर उभारा। तकरीब के आखिर में शुरका ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गर्मी बढ़ने के बाद शहरियों ने धूप से बचाव के लिए छतरियों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसके बायस छतरियों की फरोख्त में भी नुमाया इजाफा देखने में आया। इस हवाले से सना अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सूरज का पारा आसमान को छू रहा है और शहर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसके बाद शहरियों ने खुद को सूरज की तपिश से बचाने के लिए मुख्तलिफ हल ढूंढना शुरू कर दिए हैं। गर्मी से बचाव के लिए जहां लोग ठंडी मशरूबात और मुख्तलिफ अशिया का सहारा ले रहे हैं, वहीं छतरियों की मांग में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। मार्केट में छतरियों के मुख्तलिफ रंग, डिजाइन और साइज दस्तयाब हैं और दुकानदारों के मुताबिक इनकी फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। गर्मी में लोग छतरी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, धूप जरा शिद्दत में होती है, लोगों ने बाहर स्कूल कॉलेज अपने ऑफिस के लिए जाना होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम जरा दूर कर देती है, इंसान को जरा वक्ती तौर पर सुकून मिल जाता है। शहरियों का कहना है छतरी से सर पर पड़ने वाली डायरेक्ट धूप से बचाव मुमकिन है। घर से जब निकला हूँ ना, मुझे एकदम मेरे सर पे गर्मी लगी है, मुझे बहुत गर्मी फील हुई, लेकिन इस वजह से ना मैं स्पेशली इस छतरी के लिए आया हूँ दुकान पे। अगर आप भी लाहौर की झुलसा देने वाली गर्मी में बाहर निकलने का इरादा रखते हैं तो छतरी जरूर साथ रखें, क्योंकि ये ना सिर्फ फैशन है बल्कि आपको धूप से भी महफूज रखती है। गर्मियों की शिद्दत और सूरज की तेज शुआओं से बचने के लिए डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि घरों से गैर जरूरी मत निकला जाए और ऐसे में छतरी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन फहद राजपूत के साथ सना अली, नियो न्यूज़ लाहौर। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में तोली पीर पुलिस की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में SHO खाई गलास समेत 5 अहलकार शहीद हो गए। इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर और SP बाग समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। शहीद अहलकारों की मैयतों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में पहली मरतबा विमेन गेम्स का इनेकाद, खवातीन खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हम्माद अली से, जो इस वक्त सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद बलोच के साथ ही मौजूद हैं। जी हम्माद। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वुमेन गेम्स का जो है इनकाद किया गया है, जिसमें कोयटा भर से जो खवातीन हैं वो जो है गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है गेम्स का जो सिलसिला है वो जारी है, खेलों के मुकाबलों का। मेरे साथ मौजूद है सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद साहिबा, इनसे जानते हैं। बलूचिस्तान वुमेन गेम्स के इनकाद का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी बच्चियों को प्लेटफॉर्म दें कि यहाँ आकर वो अपने टैलेंट का मुजाहरा करें, दूसरा ये कि हम प्रमोट करें। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 5 से 6 हज़ार जो वुमेन गेम्स है, इसमें जो खिलाड़ी ख़वातीन हैं उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका इनकाद जो है इनका कहना था कि खुशाइंद है और मज़ीद भी जो वुमेन खिलाड़ी हैं जो आगे आना चाह रही हैं, उन्हें जो है तमाम तर सहूलियात जो है महकमा खेल हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से फराहम की जाएंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया। सफाई के हवाले से रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुसाफिरों से मुलाकात और उनके रेलवे के बारे में तासुरात जाने। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि जब आवाम कहते हैं हनीफ साहब आपने रेलवे को बदल कर रख दिया तो दिल खुश हो जाता है। वज़ीर रेलवे की खिदमत पर आवाम की तारीफ़ें, रेलवे में नुमायां तब्दीलियों पर आवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल। वज़ीर रेलवे ने फ्रंट डेस्क का जायज़ा लिया और अमले से बातचीत की। स्टेशन पर जारी कामों का तफसीली जायज़ा लिया। रावलपिंडी स्टेशन की सफाई और मजमूई देखभाल पर DS पंदी को दाद दी। स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव वॉशरूम के काम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर रेलवे ने स्टेशन की बेहतरी के लिए जारी इक़दामात को सराहा। कराची में ईद का चांद नजर आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ कामरान सोहेल से। देखिए, ईद उल अज़हा का चांद नज़र आते ही कराची के जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद के अंदर शहर में कायम मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे जानवर हैं, तकरीबन जो है वो 1.5 लाख से 7.5 लाख तक की कीमत के जानवर जो है वो यहाँ दस्तयाब हैं। और यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से जो है वो सहूलियात भी फराहम की गई हैं जो लोग जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि
उन्होंने क्या सहूलियात यहाँ फराम की है, उनके जानवर कैसे हैं। 1.5 मन से लेकर के 9 मन तक का जानवर मौजूद है। व्यापारियों का यही कहना है कि उन्होंने सहूलियात तो यहाँ पर लोगों के लिए फराम की है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जानवर इस साल तकरीबन जो है वो 40,000 रुपये महंगा है। जल्द अज जल्द जो है वो जानवर ख़रीद लें, क्योंकि अब चाँद नज़र आ चुका है और ईद में सिर्फ 10 रोज़ बाकी हैं और लोगों की ख्वाहिश है कि इन 10 रोज़ के अंदर जो है वो कुर्बानी का जानवर बआसानी ख़रीद लें। जी, ईद उल अज़हा करीब, मंडियों में जानवरों की मांग में इजाफा। सहराई शान लाड़ के ऊँटों और सफ़ेद ऊँटों ने मवेशी मंडी में मचाई धूम। खरीदार सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि देखने, सराहने और तस्वीरें लेने के लिए भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। सहराई शान कराची वालों को मंडी में ही देखने को मिलते हैं। कराची से देखते हैं समिया खुर्शीद की रिपोर्ट। नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी दोस्त मंडी में सहराई जहाजों की वसी रेंज, लाड़ नस्ल के ऊंट अपनी शानो शौकत के साथ खरीदारों को अपनी जानिब खींच रहे हैं। यह बुलबुल 20 मन वजनी लेकिन मिजाज का इतना ही हल्का और फ्रेंडली है। बुलबुल की सतवानाक, गोल मटोल जिस्म और गर्दन की खूबसूरत खमीदगी किसी शाही मुजस्मे का गुमान देती है। मालिक ने इस नायाब हुस्न पर 14 लाख रुपए की कीमत रखी है। 14 लाख रुपए और इसका वजन है 20 मन से करीब होगा इंशाल्लाह। लाड़ नस्ल